Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 30th of May. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about cabinet approvals. Then we will be talking about India's first artificial intelligence SEZ to come up in Chhattisgarh. What is this SEZ? We will be discussing here. Then India will be India to operationalize 47 new national waterways by 2047 that will enhance the logistics. Then India's first privately led helicopter manufacturing unit to be set up by Tata Airbus in Karnataka. All these news and many more will be discussed in this video, students, so stay tuned with us till the end. Also, if you are new to our channel, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, students, so do watch these videos. They are quite important for them. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. First, we are talking about cabinet approvals, right? We are talking about Union Cabinet that has recently approved the continuation of 1.5% interest rates or interest subvention component under MISS, that is your MIS scheme, that is modified interest subvention scheme, and this will double, or this is for FY26, and the aim here is, what is the aim? It is to double the farmers income and help in the rural credit system. This will boost the agriculture growth. They will provide money in the hands of farmers, and this can be utilized for various other services that will be coming in the agriculture sector that will help the agriculture sector to grow. So this is the first approval. Second, CCEA, that is your cabinet committee on economic affairs. They have approved the construction of a 4-lane corridor that is worth 108.134 kilometers long, that will be costing 3650 crore rupees in Andhra Pradesh. Then third is CCA has also approved the construction of a 4-lane Badalwal Nellore corridor. This is another corridor of 108.134 kilometers built on with this is 3653 crore. I think this is same they are mentioned here, right? So do remember these. Moving on to the next news, that is India's first AI SEZ to come up in Chhattisgarh. What is this SEZ? First of all, students, SEZ is your special economic zone. Special economic zone. Correct. And this is AI special economic zone. That means here the focus will be on artificial intelligence. Research and development will be focused upon. You will be seeing new projects that will be doing research and development to find the various use cases of AI, right? We have multiple to incorporate them. This will be done here. You will be seeing deployment will be done here. Development of new products and services will be coming up here. Correct. And this will be a proper economic center. Correct. And here it is REC Bank. They will be investing here 1000 crore rupees. Where this will be set up? It will be set up in Nava Raipur, that is in Chhattisgarh. Correct. And this will make India as a global technology hub. Here you can see it is RECA Bank data centers. They will be investing this amount. Then RECA Bank data center, they are spread across 6 acres and will include 1.5 lakh square foot facility equipped with advanced servers and systems capable of powering AI technologies and large scale digital operations. Next is India to operationalize 47 new national waterways by 2027 and cargo traffic to reach 156 MTPA by FY26. What is this MPTA? MPTA is your million tons per annum. Correct. So our country will operationalize new national waterways, and that too specifically 47 new national waterways. This will enhance the logistics, right?
and here it will, the routes will be perfect, so it will enhance in the logistics sector, the transport will become easy, and also if maintained properly they can be used for tourism also, such as your cruise tourism. If we talk about them, 76 national waterways targeted to be operational by 2027, out of which 47 are new. Cargo volume on these are projected to reach 156 million tons per annum by FY26, and this is to reach the Maritime India target of 2030 of 200 million tons per annum. If we talk about Inland Waterways of India, who is the chairman? Vijay Kumar is the chairman here. Right, if we talk about National Waterways 1, can you tell me this is assigned to which route? It is for the Ganga River. This is 1390 kilometer dedicated corridor. If we talk about National Waterways 2, it is Brahmaputra River. Right. Next, India's first privately led helicopter manufacturing unit to be set up by Tata Airbus in Karnataka. This is an important news, students. Here, Airbus H-12 helicopter. This is the name of the helicopter that will be manufactured in-house in India in Karnataka, and it is Hyderabad, Telangana based Tata Advanced Systems Limited. Right, this is the aerospace arm of Tata Group. They have collaborated with Airbus company, and it is to establish the India's first privately led helicopter final assembly line, that is in the Kolar district of Karnataka. Important news, students, take a note of this, and this plant, it is expected to begin operations by 2026. Moving on, Vishwanath Karthikeya became the youngest Indian to complete 7 Summit Challenge. I repeat, as you can see him in the picture here, Vishwanath Karthikeya, right? He became the individual or the youngest Indian to complete this 7 Summits Challenge, right? This 7 Summit Challenge, it is basically a challenge that involves climbing the highest peak on each of the 7 continents. Right, and he completed this at the age of 17 years in 2024. Or just remember, sorry, I correct myself, he has surpassed Kamya Karthikeyan, right, who completed 7 summits at the age of 17 in 2024, and he is 16 years of age. He is 16 years of age. Next, here if we see, he has successfully climbed Mount Everest, then Denali in North America, Mount Elbrus in Europe, Mount Kilimanjaro in Africa, then Mount Vinson in Antarctica, and on. Next, WMO report 25 to 29 has been recently released. What is this report about? This is a report that is talking about the rise in the temperature, right? So recently, that is WMO, World Meteorological Organization. This is Geneva, Switzerland based organization. They have released their global annual report, right, that is talking for the period 25 to 29. They are projecting that the global temperature temporarily surpassing 1.5 degrees Celsius threshold above the pre-industrial level within the next 5 years. That means the temperature is about to get hot, right? The summers will get even hotter. Also, each year from 25 to 29, it is expected to witness an average global near surface temperature rise between 1.2 degrees Celsius to 1.9 degrees Celsius, right? And there is an 80% chance that at least 1 year in 25 to 29 will surpass the 2024 as the warmest year on record. Next is gold loan rules. 9 crucial proposals made recently by RBI in the draft guidelines. What are these guidelines about? If we see, so RBI, they have launched some procedures for the banks and NBFCs to issue the gold loans, because we are seeing as the gold price has risen, right? So people are having gold in their hand, right? On the other side, we are seeing that the middle class in India is getting into trouble as the inflation is high. The prices of various, be it real estate or be it from real estate to your household goods, they have increased significantly, right? So many families, in order to sustain, they are lending their, or they are keeping these jewelries, right, and taking a loan against them, right? That is your gold loan. So now this gold loan in the past 2 to 3 years, we have seen that it has significantly increased after COVID-19, correct? So now on these loans, RBI has stated some guidelines that these banks and these NBFCs, they should follow these guidelines before they issue the gold,
right? Under this we are seeing that loan to value ratio capped at 75%. This means if the gold was pledged worth 100 rupees, the maximum loan amount the customer will be getting is 75 rupees. That means if they are having 100 rupees of gold, they can take 75 rupees on it as your loan, correct? Then apart from this, proof is required for the ownership, right, that you are having this gold. If you are using it as a collateral, you need to have a proof that it was owned by you, correct? Then borrowers to get gold purity certificate also, that the person who will be borrowing, they must have, or they both should have a purity certificate that the particular gold is of this much purity and value. And now another thing, loan against silver has also been allowed. You can take loan against silver also. Next is SBI Life Vidyaniti. They have acquired 4.25% stake in NHIT for 1,100 crore rupees. I repeat, Mumbai, Maharashtra based SBI Life Insurance Company, a joint venture between State Bank of India and Francis BNP Paribas Cardiff and Bengaluru, Karnataka based Vidyaniti LLP. They have jointly acquired 4.25% stake in National Highway Infra Trust for 1,100.61 crore rupees in this deal. Right, take a note of this. Then moving on, and one more thing, in this SBI Life Insurance, they purchased approximately 3.74 crore units, accounting for 1.93% stake, while Vidyaniti LLP, they acquired for 2.3% stake in this NHIT. Moving on, next is RBI has proposed draft amendments to KYC master directions to simplify the compliance. I repeat, RBI, they have released a draft circular titled Periodic Updation KYC Revised Instructions, right? They are proposing the amendments to the existing KYC master direction. If we look at them, these proposed changes, they will streamline the KYC process, it will reduce the compliance burden, and it will enhance the customer convenience specifically for low risk individuals. Also, if we see here, bank shall permit the customers to update their KYC at any branch, including non-home branch, for the purpose of reactivating the dormant or inoperative account, first thing. Then upon customer request, the banks may facilitate remote KYC updation through video-based customer identification process. That means the representative, they will be giving a video call to the customer for the KYC, right? It is as per the requirement or as per the date and time that will be given by the customer itself. Right, then there will be a proper due diligence will be there, then high risk monitoring will be there, KYC updation will be there. That means the time periodic will be there, that is high risk customers every 2 years, medium risk customers, they will be checked after every 8 years, then low risk after every 10 years and so on. Moving on, next is SEBI. SEBI has barred the former IndusInd Bank CEO and 4 others from market for insider trading. SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, they have barred the former IndusInd Chief Executive Officer Sumant Katpalia and 4 other senior officials because they found that there can be some insider trading that has been going on. Insider trading is banned. Insider trading is basically when you give insight about the operations of the company, that so and so can happen, that can impact the share price, that it can whether go up or down, and based on that the profit is made by an individual, right? And that information was given by these respective individuals. So that is insider trading, which is not legal. So for that, recently SEBI has barred them from other markets for the foreseeable future. Also, if we see that here, Jio BlackRock Asset Management, they have received the SEBI's approval for mutual fund business in India, and they have also appointed MD and CEO. Correct. So Jio and that is Jio Financial Services and BlackRock, they have partnered together and they have got this mutual fund here, mutual fund approval. Also Jio BlackRock AMC also announced the appointment of Sid Swaminathan as their MD and Chief Executive Officer. Next is economy and business students. India's coal import fall 7.9% to 243.62 million ton in FY25. That is right. Ministry of Coal, they have announced that India's coal import declined by this amount, right, to 243.62 million tons in FY25. And this reduction led to a foreign exchange saving of approximately $7.93 billion. Next is awards and recognition. Sadhguru conferred with the Global Indian of the Year 2025 award by CIF, that is Canada India
Foundation, right? So Jaggi Vasudev, right? That is your spiritual leader and founder of Isha Foundation, Jagdish Ji Jaggi Vasudev, also known as Sadhguru, was conferred with this Global Indian of the Year 2025. Correct. And this Global Indian of the Year award recognizes individuals of Indian origin who have made global impact through their work. Next is appointments and resignation. Anil Kumble has been appointed as the Forest and Wildlife Ambassador of Karnataka State. I repeat, who has been appointed as the Forest and Wildlife Ambassador for Karnataka State? Anil Kumble, the former Indian cricketer. Right? This will create awareness among the public about forest conservation, forest development, tree conservation, and wildlife conservation. Also remember, in May 2025 only, Gurugram, Haryana based Dettol India, right? That is a germ protection brand. That brand has also appointed MS Dhoni as their brand ambassador. Next is science and tech. Google has unveiled AI Metroksha, right? This is the AI first strategy emphasizing intelligence and privacy challenges. I repeat, recently Google, they have introduced AI first restructuring strategy that has been named as AI Mitryoksha, right? This was during the Google I/O Developers Conference that was held in California. This multi-layered AI ecosystem, this will revolutionize the interaction among the users, developers, and enterprise by embedding an AI across all the Google platforms. See students, now it is being said that almost 90 to 100% of the code in the future 2 to 4 years we will be seeing will be written by AI itself, right? Agents will be coming into play and they will be writing the code whatever is required here. Correct? Take a note of this. Then here in this Mitryoksha you will be seeing layered infrastructure will be there, proper layered architecture will be there, central intelligence will be there, Gemini 2.5 models will be used, Ironwood will be used. What is this? Ironwood is the chip of Google. Then generative media models will be there, user interaction will be there, and so on. Then for who is the chief executive officer of Google? Sundar Pichai. Headquarters in California, USA. Next is sports. PepsiCo has joined the official partner of Formula 1, right? So who has become the official partner of Formula 1? It is PepsiCo. And they will be in this position till 2030. Next is India will be hosting 2026 Asian Wrestling Championship after 44 years. I repeat, Doha, Qatar based Asian Weightlifting Federation, not wrestling, I correct. India will be hosting the 2026 Asian Weightlifting Championship, and Doha, Qatar based Asian Weightlifting Federation announced Ahmedabad, Gujarat will be the host for the 2026 Asian Weightlifting Championship from 1st to 10th of April 2026, and this is after a 44 years of gap. This tournament will be organized by New Delhi based Indian Weightlifting Federation under the aegis of Asian Weightlifting Federation. Next is important day, students. International Day of United Nations Peacekeepers observed on 29th of May. This day is observed to raise or to basically honor the dedication and courage of the personnel serving in the UN peacekeeping operations worldwide. This year it was the 77th anniversary of this day, and there is a theme that is the future of peacekeeping. What is the theme? The future of peacekeeping. Here you can see this is the theme. Next is World Digestive Health Day observed on 29th of May. This day is to raise awareness about a good gut health. You should have a good digestive system. You should eat healthy, right? And good health will keep you away from a lot of diseases. This day is observed by World Health Organization, and the theme here is your digestive health, nourish to flourish. I repeat, your digestive health, nourish to flourish is the theme here. Next is International Everest Day observed on 29th of May. This day is observed to raise awareness about Mount Everest, right? As on 29th of May, the first ever successful summit of the Mount Everest was in 1953 by mountaineer Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary was of New Zealand, and second was Tenzing Norgay, a Sherpa from Nepal. So they were the first individuals to climb Mount Everest on 29th of May in 1953. Hence we observe this day, International Everest Day, on 29th of May. That's all for the day, students. If you find the session interesting, do hit the like button. Now it's time for the revision part. Next, students, we are talking about international affairs.
Microsoft has unveiled a quantum chip by the name Majorana 1 that is powered by new state of matter, right? Also remember recently it was Google. They have also launched a new quantum chip. What is the name of that quantum chip? This is your homework. Coming back, Microsoft, they have unveiled this Maurana 1 that is a new quantum chip. Then Brazil, they have joined the OPEC Plus forum to balance the oil production and energy transition goal. We have discussed this. And this year's BRICS summit will also be held in basically the chairmanship of BRICS is with Russia, Brazil. Then India, Bangladesh, they have agreed to launch a new hotline between the borders. That means it will establish a communication between India and Bangladesh. Then the Cali Fund, they have launched in the margins of the resume sessions of the COP16, and United Arab Emirates, they have launched a 10-year blue residency visa system. Similarly, a golden visa system launched by USA will be costing how much? What is the amount that an individual need to pay for buying this golden visa? This is your homework. स्टूडेंट्स आइए कुछ वन लाइनर्स रिवाइज करते हैं. अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से स्टार्ट करते हैं. शक्तिकांत दास, इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू प्राइम मिनिस्टर. कोटक महिंद्रा प्राइम, इन्होंने अपॉइंट किया शाहरुख तोडीवाला को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ. देन नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंड किया गया इनका टर्म बाय 1 ईयर. सिमिलरली राजीव सिंह रघुवंशी का भी टर्म एज डीजीसीआई एक्सटेंड कर दिया गया बाय 1 ईयर. कश पटेल, ये 9वें एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं. देन यूनिलीवर के सीईओ हैन शुमाकर, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से. देन टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर टू लीड द रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन. देन फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेबी चेयरमैन. नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर. शामी ने अभी ज्वाइन किया अलीट लिस्ट ऑफ बॉलर्स विद 200 ओडीआई विकेट्स वनडे इंटरनेशनल. देन रोहित शर्मा, ये सेकंड फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए टू कंप्लीट 11,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट. सिमिलरली विराट कोहली, ये फास्टेस्ट पर्सन बन गए टू कंप्लीट 14,000 रन्स इन ओडीआई. गुलवीर सिंह, इन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक 13-minute बैरियर इन मैन 5,000 मीटर इंडोर रेस. देन जीवन एंड विजय सुंदर पार्शनाथ, इन्होंने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स टाइटल को जीत लिया. एंड इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम, ये थर्ड आई इन द सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 में. नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर. आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज करी सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड जेएम फिन होम लोन्स पर. एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है यूनिफाइड इन्वेस्टर्स ऐप. मोबीक्विक, इन्होंने एक्वायर किया 3.39% स्टेक इन अ B2B बिजनेस टू बिजनेस इंफ्रा प्लेटफॉर्म ब्लॉस्टम में 1.49 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से. देन एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा टू हेड द पैनल टू इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ. देन आरबीआई ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को टू फोकस ऑन वीमेंस प्रॉस्पेरिटी. एंड सेबी, इन्होंने स्लैप किया 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी ऑन एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर वायलेटिंग द स्टॉक रूल्स. किन्होंने रिसीव किया नेशनल अवार्ड एट द 5वें एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशन 2025 के दौरान फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द एज द चेयरपर्सन ऑफ कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स. सिंपली ये भी आ सकता है कि कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की चेयरमैन कौन है, तो वो है डॉक्टर उमा शर्मा, जिनको अभी सम्मानित किया गया. नेक्स्ट एक और चीज़, ये जो इवेंट था इंटरनेशनल वीमेंस डे के दौरान हुआ था, जो कि 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट, इन मार्च डैश वाज नेम्ड द ENY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर. तो वो कौन है? नितिन कामत यहाँ पे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 रहे. नेक्स्ट, किन्होंने ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस को रिसीव किया, राइट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ड्यूरिंग कोविड-19 के लिए. तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसीव किया गया. नेक्स्ट, किन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स इन्होंने टॉप किया एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडिया वैल्यूएबल रैंकिंग 2025, जो रिलीज की गई है YouGov के द्वारा इन मार्च 2025. तो वो कौन सा ब्रांड रहेगा? अमेजॉन. वर्ल्ड में किसने टॉप किया, कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओ. नेक्स्ट, किन्होंने रिसीव किया 2026 का द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज बाय यूनेस्को इन मार्च 2025. तो वो कौन है? सुमन चक्रवर्ती. Next, which of the following insurance companies was not ranked among the top 5 strongest insurance brands globally as per the Brand Finance Instrument 100 2025 की रिपोर्ट इन मार्च 2025. तो कौन सा ब्रांड है? SBI का लाइफ इंश्योरेंस, ये इस लिस्ट में नहीं था. PZU पोलैंड फर्स्ट पे, चाइना इंश्योरेंस सेकंड पे, NRMA फोर्थ पे, राइट. तो थर्ड पे कौन सा आ जाता है? वो है हमारा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. मार्क करेंगे इसको.
इसके बाद आ जाते हैं द प्रेस्टिजियस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। यह भी 2025 मार्च में अवार्ड किया गया। किनको? डॉक्टर एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड सुतॉन को। किस लिए? फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे, जो कि 8 मार्च को था, किन्होंने अनाउंस किया, किनको अनाउंस किया गया एज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने रिसीव किया रामसर वीमेन चेंज मेकर्स इन द वर्ल्ड वेटलैंड अवार्ड्स फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पे इस अवार्ड से? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। नेक्स्ट, 2025 मार्च में आइडेंटिफाई द इंडियन एयरपोर्ट जिनको रिसीव किया गया, जिसने रिसीव किया अपना 8th कॉन्जिक्यूटिव एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड को फॉर बेस्ट एयरपोर्ट फॉर ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो आइडेंटिफाई दैट इंडियन एयरपोर्ट, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, द लीडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कौन सा है जिसने अभी 2 गोल्ड अवार्ड्स को जीता? स्कॉच अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए। वो कौन सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है? वो है मुथूट माइक्रोफिन। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए एंड आपका BFSI अवार्ड, ये 2 अवार्ड जीते गए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल इनिशिएटिव जो कि इंट्रोड्यूस किया गया RBI के द्वारा, जिसने रिसीव किया ग्लोबल रिकॉग्निशन इन मार्च बाय अर्निंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 को फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस ऑफ UK। तो वो 2 इनिशिएटिव्स कौन से हैं? सारथी एंड प्रभा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द EV स्टार्टअप जिसने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल को, जिसका नेम रहेगा वीर। पूछा जा रहा है उस स्टार्टअप का नाम बताओ। वो स्टार्टअप है प्रवायक डायनेमिक्स। ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप रहेगा। एंड अलग क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है? वीर। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी जिनको ऑनर किया गया 2025 के हॉलबर्ग प्राइज से फॉर हर इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन टू फेमिनिस्ट थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थॉट के लिए। तो वो कौन है? वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। नेक्स्ट, एक और चीज, इनको 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड, जो कि मार्च 2025 में हुए दिल्ली में, 27 जर्नलिस्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया अक्रॉस 20 डिफरेंट कैटेगरीज। हाउ मच वाज द कैश प्राइज टू ईच रेसिपिएंट? तो 1 लाख रुपए का कैश प्राइज था हर रेसिपिएंट के लिए। नेक्स्ट, किस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिप्लोमेट या फिर विच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिप्लोमेट जो कि सर्व कर रहे हैं एज द चेयरमैन ऑफ द सनमार्ग ग्रुप एंड द ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ डेनमार्क फॉर साउदर्न इंडिया, इनको रिसीव हुआ या फिर इनको सम्मानित किया गया नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेननबॉर्ग के साथ फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क इन 2025। तो किनको सम्मानित किया गया है इससे? वो है विजय शंकर। ये चेयरमैन हैं ऑफ सनमार्ग ग्रुप एंड इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है काउंसलर सर्विसेज के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। Next, who was honored with the Lifetime Achievement Award for Excellence in Public Service through Cultural Leadership at United Kingdom Parliament in March 2025? तो वो हैं वेटरन एक्टर के चिरंजीवी, काफ़ी फेमस वेटरन एक्टर हैं साउथ इंडिया से एंड इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये किस स्टेट से या फिर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी, इन्होंने अप्रूव किया सिलेक्शन ऑफ 22 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस फॉर साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज ड्यूरिंग द मीटिंग जो रविंद्र भवन में हुई न्यू दिल्ली में। पूछा जा रहा है इसमें से कौन से वो ट्रांसलेटर एंड लैंग्वेज है जो मैच नहीं कर रहे हैं। बाकी सभी सही हैं, बस मलयालम का केशकर ठाकुर नहीं है। मलयालम लैंग्वेज के ट्रांसलेटर कौन रहेंगे? KV कुमारन। नेक्स्ट आ जाते हैं डैश अलॉन्ग विद कॉर्डोबा फोर्टल्जा एंड, तो 3 कंट्री हो गई है। वो कौन कौन सी हैं? वो है ग्रेटर मैनचेस्टर, कॉर्डोबा एंड फोर्टल्जा। इनको रिकॉग्नाइज किया गया 2025 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट के द्वारा इन पेरिस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन रिड्यूसिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, करेक्ट, ऐसी डिजीज को, कैंसर हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हो गई एंड इंजरी रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं द रिनोन पोएट एंड नॉवलिस्ट विनोद कुमार शुक्ला, इनको सेलेक्ट किया गया फॉर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इन मार्च फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू विच लिटरेचर? तो कौन से लिटरेचर के लिए? हिंदी लिटरेचर के लिए। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि विद दिस अवार्ड ये वो पहले राइटर बन गए हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़
एंड 12वें हिंदी ऑथर जिनको सम्मानित किया गया। Before moving on, students, let's revise some one-liners. Let's start with appointments and resignation. Shaktikant Das has been appointed as the Principal Secretary second to the Prime Minister. Kotak Mahindra Prime appointed Shahrukh Todiwala as the new Managing Director and Chief Executive Officer. Niti Aayog's Chief Executive Officer Subramaniam's tenure extended by how many years? By 1 year. Then government has extended Rajiv Singh Raghuvanshi's tenure as DGCI by another 1 year. Kash Patel has been sworn in as the 9th FBI director. Unilever CEO Hen Schumacher has recently stepped down from his position. Then Tata Sons chairman N. Chandrasekaran to lead Ratan Tata Endowment Foundation. Also the finance secretary Tuhin Kanta Pandey appointed as the new SEBI chairman. Next is related to sports students. Shami has joined the elite list of bowlers with 200 ODI wickets. Then Rohit Sharma became the second fastest to complete 11,000 runs in ODI cricket. Then Virat Kohli became the fastest to secure 14,000 ODI, that is one day international runs. Gulveer Singh made history by becoming the first Indian to break 13-minute barrier in men's 5,000 meter indoor race. Then Jeevan and Vijay Sundar Parshnath won the Pune ATP Challenger 100 doubles title. Indian women football team has finished third in the second Pink Ladies Cup 2025. Next is related to banking and finance. RBI has imposed penalty on Citibank, Ashirwad Microfinance and JM Finance home loans. Then NDSL and CDSL, they have unified the investor app. This application has been launched by them. MobiKwik to acquire 3.39% stake in B2B, that is business to business infra platform Blossom for 1.49 crore rupees. Then ex-SBI chairman Dinesh Khara to head panel to implement amendment to insurance law. RBI to launch the Financial Literacy Week to focus on women's prosperity. And SEBI, they have slapped 10 lakh rupees penalty on Axis Securities for violating the stock rules. Next students, let's move to the homework section. First question is, name the operation that was launched by our country India in order to help Myanmar, right, when they were hit by earthquake. Then second question, tell me recently government has launched a taxi service across India similar to that of Ola and Uber. What is the name of that company or that service? Third question, tell me recently who inaugurated or where was India's first vertical lift sea bridge inaugurated? Name the location. Then fourth question students, tell me recently who has been appointed as the RBI's deputy governor. How many deputy governors are there and name them. So you will be having in today's video 4 homework questions students, and I need to see maximum participation from all the students who are watching this video. See students, I do watch the comments and I do know the individuals who are commenting below, and those are the sincere students. So I want more and more sincere students who do the homework regularly, right? Because this will be very important for competitive exams, right? It will help you to revise the content again and again. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 30 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स देखेंगे। देन हम बात करेंगे इंडिया के पहले SEZ की, जो कि छत्तीसगढ़ में आएगा। देन 47 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे, जिससे हमारी लॉजिस्टिक बहुत बेटर होती हुई दिखेगी। देन हम बात करेंगे इंडिया का पहला प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जा रही है कर्नाटका में। किसके द्वारा, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखा करो, इससे आपकी लर्निंग बहुत बेटर होगी। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माई नेम इज विकास राणा।
We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। कैबिनेट अप्रूवल सबसे पहले हम देखेंगे। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहला है, इन्होंने अप्रूव किया कंटिन्यूएशन ऑफ 1.5 इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट को अंडर मिस स्कीम, जो कि है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर FY26। इसके अंडर एम क्या है कि जो फार्मर है उनकी इनकम हम डबल कर सकें, क्रेडिट सिस्टम को बेटर किया जा सके एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ को बूस्ट लाया जा सके। इससे क्या होगा, जो कम इंटरेस्ट होगा तो पैसे कम दिए जाएंगे, फार्मर्स के पास ज़्यादा पैसा बचेगा। इससे क्या होगा, वो नई टेक्नोलॉजीज़ में, नए प्रोडक्ट्स में, नई सर्विसेज में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिससे उनका जो आउटपुट है क्वालिटी वाइज बढ़ सके एज वेल एज क्वान्टिटी वाइज। तो ये हो गया पहला। दूसरा जाता है CCEA। इन्होंने अप्रूव किया 4 लेन का एक कॉरिडोर जो कि 108 किलोमीटर लंबा रहेगा। 3600 करोड़ की लागत से इसको आंध्र प्रदेश के में बनाया जाएगा ऑन NH67 एंड थर्ड भी ये सेम ही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर इंडिया का पहला AISEZ, ये कहाँ पर आएगा, छत्तीसगढ़ में आएगा। अब देखो SEZ होता क्या है। SEZ होता है सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। AI सेंट्रिक रहेगा, मतलब AI के ऊपर काम किया जाएगा। यहीं पे आप देखेंगे रिसर्च होती हुई दिखेगी AI के ऊपर, नए यूज़ केसेस लाए जाएंगे, नए मॉडल्स ट्रेन किए जाएंगे, राइट। एंड फिर एजेंटिक के ऊपर काम होता हुआ दिखेगा, नए एजेंट्स होंगे। यहाँ पे GCCs बनाए जाएंगे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, राइट। यहीं पे आप देखेंगे डिप्लॉयमेंट होता हुआ दिखेगा बेटर सर्विसेज का, करेक्ट। तो इंडिया का पहला AISEZ कहाँ पर आएगा, छत्तीसगढ़ के में आएगा। इसको रैक बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे नवा रायपुर में, जहाँ पर इसको बनाया जाएगा इन छत्तीसगढ़, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड 1.5 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे फैसिलिटी रहेगी, जो कि इक्विप्ड रहेगी विद एडवांस सर्वर्स एंड सिस्टम कैपेबल ऑफ पावरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है, इंडिया ऑपरेशनलाइज करेगा 47 नए नेशनल वाटरवेज को बाय 2027, राइट। इससे जो टोटल नंबर है 77 हमें होता हुआ दिखेगा, करेक्ट। यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़, नेशनल वाटरवेज से होगा क्या, एक तो हमारी लॉजिस्टिक्स बेटर हो जाएगी, राइट। सामान का जो ट्रेड है बिटवीन इंडिया वो और बेटर होता हुआ दिखेगा, कॉस्ट रिड्यूस होती हुई दिखेगी हमें, राइट। पॉल्यूशन कम होता हुआ दिखेगा एंड जो कंजेशन हो जाता है रोडों पर वो भी यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा। तो 76 नेशनल वाटरवेज टारगेटेड टू बी ऑपरेशनलाइज बाय 2027, इंक्लूडिंग 47 न्यू रहेंगे। 77 नहीं, ये कितने रहेंगे आपके, 76 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। फिर एक और चीज़, जो कार्गो वॉल्यूम है वो 156 मिलियन टन्स पर ईयर अचीव कर गई इन FY26, तो ये प्रोजेक्टेड है। एंड हमारा एक टारगेट भी है कि 2030 तक इसी को 156 को हम 200 मिलियन टन्स पर एनम तक ले जा सके। एक और चीज़, इनलैंड वाटरवेज जो ये IWT इनलैंड वाटरवेज ट्रांसफर नेटवर्क जो है, इट इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 स्टेट्स टू 23 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो चेयरमैन विजय कुमार रहेंगे। यहीं पे अगर हम देखें, चलो बताओ, नेशनल वाटरवेज 1 एंड नेशनल वाटरवेज 2 ये दोनों कौन से हैं। तो नेशनल वाटरवेज जो 1 है ये तो आ गया आपका गंगा रिवर का, नेशनल वाटरवेज 2 ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ सेटअप की जाएगी, कर्नाटका में सेटअप की जाएगी, कोलार डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाएगी, राइट। एंड ये पहली रहेगी इंडिया में जहाँ पे हम इन हाउस यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स को। कौन से हेलीकॉप्टर को, एयर H125 हेलीकॉप्टर को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 2026 तक ये जो प्लांट है ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, ये एक एरोस्पेस आर्म है टाटा ग्रुप का, इन्होंने कोलैबोरेट किया है एरोस्पेस जायंट एयरबस के साथ टू इस्टेब्लिश द इंडिया का पहला प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। नेक्स्ट, विश्वनाथ कार्तिकेय, ये यंगेस्ट इंडियन बन गए जिन्होंने कंप्लीट की 7 समिट चैलेंजेस। ये 7 समिट चैलेंज क्या है कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें जो हाईएस्ट पीक है उनको क्लाइम करना। एंड ये 16 साल के हैं जिन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया है, राइट। इससे पहले 17 साल के थे काम्या कार्तिकेयन, राइट, उन्होंने 2024 में इस टारगेट को अचीव किया था। अब ये 16 साल के हैं जिन्होंने इस टारगेट को
अचीव कर लिया है। यहीं पे अगर हम देखें तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट के अलावा आपकी माउंट देनाली, देन माउंट खिलजिमारो जो अफ्रीका में है, माउंट एनाकोवा, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट कॉसिकुजो एंड माउंट एल्ब्रस जो यूरोप में है, ये सारी पीक्स यहाँ पे क्लाइंब करी। नेक्स्ट आ जाते हैं WMO रिपोर्ट। WMO क्या है? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की अबाउट द ग्लोबल टेम्परेचर, जो बता रही है कि आने वाले टाइम में 2025 से 2029 के बीच में हम देखेंगे जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट। ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल हैं जो कि 1850 से लेके 1900 तक का टाइम पीरियड, राइट, उसको यहाँ पे उस इंडस्ट्रियल लेवल के थ्रेशोल्ड को ब्रीच होता हुआ दिखेगा हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में। एंड जो बताया गया था कि 2024 अभी तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला था यहाँ पे, उसको भी आने वाले 5 साल में 1 साल ऐसा होगा जब हम उस ईयर को ब्रीच करेंगे। एंड जो ऑन एन एवरेज बोला जा रहा है, हर साल यहाँ पर 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.9 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें नियर टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखेगा। देयर इज अ हाई चांस, राइट, क्योंकि आने वाले 4 साल तक यहाँ पे बताया जा रहा है गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसका एक और इम्पैक्ट देख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी समझिए कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो इंडिया में जो मॉनसून है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और इस बार बताया जा रहा है कि जो मॉनसून होगा वो ऑन एन एवरेज ज़्यादा होगा। एंड अभी से आप देख सकते हैं जो मॉनसून है वो इंडिया में कहीं ना कहीं आ गया है, जो कि 1 या 2 महीने पहले आ गया, वरना इतनी जल्दी मॉनसून आता नहीं था। नेक्स्ट आ गए हैं गोल्ड लोन रूल्स। अभी कुछ सेबी के द्वारा अभी कुछ RBI के द्वारा यहाँ पे लोन के जो गोल्ड लोन होता है, राइट, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च करी गई हैं फॉर NBFCs एंड नॉन NBFCs, राइट। जैसे अगर हम बात करें लोन टू वैल्यू की, राइट, मतलब अगर आपने 100 रुपये का आपके पास गोल्ड है, आप इसको गिरवी रखवा के लोन लेना चाहते हैं तो आपको 75 रुपये ही मिलेंगे, 75% तक का ही लोन मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी, जो गोल्ड ओनरशिप है वो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो गोल्ड आप ओन करते हैं, राइट। इसी के अलावा सिल्वर के अगेंस्ट भी यहाँ पर लोन लेना अब अप्रूव कर दिया गया, आप सिल्वर के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, राइट। हमने देखा कोविड-19 के बाद से घरों में सेविंग्स कम हो गई, लोगों ने अपना गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पे गिरवी रखी है एंड उसके अगेंस्ट भी लोन यहाँ पर लिया है काफ़ी लोगों ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है SBI लाइफ एंड विद्यानिधि। इन्होंने एक्वायर किया 4.25% का स्टेक इन NHIT फॉर 1100 करोड़ रुपीस। अगर हम बात करें तो टोटल 4.25% का ये स्टेक रहेगा, जिसमें से अगर हम देखें SBI लाइफ ये 1.93% स्टेक ओन करेंगे एंड विद्यानिधि ये आपका 2.3% स्टेक यहाँ पर ओन करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने प्रपोज किए ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू KYC मास्टर डायरेक्शंस टू सिंप्लीफाई द कंप्लायंस। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस इनके द्वारा लॉन्च की गई हैं RBI के द्वारा, जिससे KYC प्रोसेस को और इजी किया जा सकता है, जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम किया जाएगा एंड कस्टमर कन्वीनियंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कुछ अप्रूवल्स कि यहाँ पे बैंक्स ने परमिट कर दिया कस्टमर्स को टू अपडेट देयर KYC एट एनी ब्रांच। उनकी जो भी ब्रांच है वहाँ पे आप KYC करा लो, इंक्लूडिंग द नॉन होम ब्रांचेस, जो आपके आसपास घर के आसपास के अलावा जो आपकी ब्रांच है उसके दूर की ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी आप करवा सकते हैं, राइट। अगर एंड फॉर द पर्पज ऑफ रीएक्टिवेटिंग योर डोरमेंट और इनऑपरेटिव अकाउंट्स। देन उसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ गाइडलाइंस ये भी बताती हैं कि आपका जो कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस होगा उसके लिए मास्टर डायरेक्शंस आई हैं। आपका KYC अपडेशन कहीं पे भी हो सकता है, फिर आपको वीडियो KYC का भी ऑप्शन मिलेगा कि आपके घर पे ही कॉल आ जाएगा, आप डेट एंड टाइम बता दीजिए किस टाइम के बीच में आपको कॉल कर सकते हैं, राइट। एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का आपका यहाँ पे हेल्प दिया जाएगा कि किसी को प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, उनको हेल्प चाहिए तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर उनको मिलते हुए दिखेंगे, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर सेबी ने बार किया फॉर्मर इंडसइंड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एंड 4 अदर्स को फ्रॉम द मार्केट इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कि आप पहले ही आपको पता है कि मार्केट आपकी कंपनी क्या डिसीजन लेने वाली है, उसका आपके जो शेयर्स हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपने किसी फ्रेंड, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स किसी को भी दे देते हैं, जिसको वो पैसा इन्वेस्ट करके उस चीज़ के बेसिस पे, उस नॉलेज के बेसिस पे, उस फैक्ट के बेसिस पे वो मार्केट से प्रॉफिट ले लेते हैं। तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड यहाँ पर फिर ये जो जिस इंडिविजुअल्स ने ये इन्फॉर्मेशन दी ये अपना शेयर भी ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इसको बैन किया गया है, दिस इज इलीगल। आप यहाँ पे अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वो ऐसे शेयर नहीं कर सकते जिससे मॉनेटरी बेनिफिट हो सके,
राइट। तो अभी सेबी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक के जो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सुमंत कथपालिया जी, इनको यहाँ पे बैन कर दिया गया एंड 4 अदर्स फ्रॉम द मार्केट्स। रीजन क्या दिया गया? मार्केट मैनिपुलेशन। फिर इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक एंड जियो पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इनके बीच में पार्टनरशिप हुई थी, हमें याद है। इन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली थी एंड अब उस कंपनी को सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल गया है कि वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंटर कर सकते हैं इन इंडिया। नेक्स्ट एक और चीज, इन्होंने यहाँ पे एमडी एंड सीईओ भी अपॉइंट किए हैं। वो हैं कौन? वो हैं सिड स्वामीनाथन। नेक्स्ट आ जाता है फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। इंडियाज कोल इंपोर्ट्स फॉल 7.9% टू 243.62 मिलियन टन इन FY25, राइट। एंड ये जो रिडक्शन है इट लेड टू फॉरेन एक्सचेंज सेविंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7.93 बिलियन इन FY25। तो हमारा कोल इंपोर्ट कम हुआ है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे आ जाते हैं। सदगुरु जी जो हैं आपका ईशा फाउंडेशन के स्पिरिचुअल लीडर एंड फाउंडर जगदीश वासुदेव या जग्गी वासुदेव, जिनको सदगुरु के नाम से जानते हैं, इनको अभी कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया था। एंड ये किसी भी इंडियन ओरिजिन के इंडिविजुअल को दिया जाता है जिन्होंने ग्लोबल इम्पैक्ट किया हो थ्रू देयर वर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। अनिल कुंबले, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। इनको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है कर्नाटका स्टेट के द्वारा। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बच्चों में, यंगस्टर्स में फॉरेस्ट डेवलपमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ट्री प्रिजर्वेशन के ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन बनता हुआ दिखेगा, अवेयरनेस क्रिएट होगी। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे डेटॉल इंडिया। डेटॉल ब्रांड को तो हम सब जानते हैं, आपको चोट लगती है तो डेटॉल से साफ करते हैं। तो डेटॉल इंडिया इन्होंने अपॉइंट किया था MS धोनी को अभी मई 2025 में एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, राइट। ये भी याद रखेंगे, अभी की न्यूज़ है इसी मंथ की। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक के ऊपर। गूगल के द्वारा AI मेट्रियोक्शा, ये अभी एक AI फर्स्ट स्ट्रेटेजी लॉन्च की है, राइट, जो कि आपके इंटेलिजेंस एंड प्राइवेसी चैलेंजेस को टैकल करेगी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो ये AI फर्स्ट स्ट्रेटेजी लॉन्च की गई है इनके द्वारा, गूगल के द्वारा। इसमें आप देखेंगे गूगल का जो आयु था, गूगल आयु डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कैलिफोर्निया में हुई थी, करेक्ट। एंड इसके दौरान इसको लॉन्च किया गया, जिससे आप देखेंगे ये एक मल्टी लेयर्ड AI इकोसिस्टम है जो कि रिवोल्यूशनाइज कर देगा इंटरेक्शंस को अमंग यूजर्स, आपके वेरियस डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजेस। लेयर्ड आर्किटेक्चर होगा, सेंट्रल इंटेलिजेंस होगा, जेमिनी 2.5 मॉडल को यूज़ किया जाएगा, आयरनवुड चिप को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, राइट, एंड मैनी मोर थिंग्स। गूगल की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। पेप्सिको ये ऑफिशियल पार्टनर बन गए हैं फॉर्मूला 1 के 2030 तक। टेक अ नोट ऑफ दिस डायरेक्ट क्वेश्चन। देन आ जाते हैं इंडिया होस्ट करेगा 2026 का एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को आफ्टर 44 ईयर्स। इंडिया में कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में होगा। एंड एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया होस्ट करेगा 2026 का एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 1 से लेकर 10 अप्रैल तक 2026 में, आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ गैप। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड सभी पीस कीपर्स जो कि UN पीस कीपिंग मिशंस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, राइट, उनका जो डेडिकेशन है एंड उनकी जो जानें चली जाती हैं इस कॉज के लिए, उसको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार 77th एनिवर्सरी हमने इसकी ऑब्जर्व करी। इसकी एक थीम याद रखेंगे, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग, यहाँ पर ये इसकी थीम रहेगी। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि हमारा गट जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, राइट, बिकॉज आधी से ज़्यादा बीमारी आपके गट हेल्थ खराब होने की वजह से आपको होती है, करेक्ट। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम है योर डाइजेस्टिव हेल्थ नरिश टू फ्लरिश। आई रिपीट, योर डाइजेस्टिव हेल्थ नरिश टू फ्लरिश, ये आपकी थीम रहेगी। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। रीज़न बीइंग 29 मई को ऑब्जर्व करने के लिए क्योंकि 29 मई को इन 1953 दो इंडिविजुअल्स जो कि थे सर एडमंड हिलरी एंड शेरपा टेंजिंग नॉर्गे, राइट, ये शेरपा थे नेपाल से एंड सर एडमंड हिलरी ये थे न्यूजीलैंड से। तो ये दोनों व्यक्ति वो पहले इंडिविजुअल्स बने थे जिन्होंने इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था 1953 में ऑन 29 ऑफ मई।
ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में और हेल्प करेगा। इन फैब इंडिया एंड डैश इन्होंने कोलैबोरेट किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया और पनामा के बीच में यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सके, जिससे इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिल सके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, रोड्स में, राइट, जो लोकल कम्युनिटीज़ को इमीडिएटली इम्पैक्ट कर सके उन प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली सिक्योर्ड 2424 करोड़ रुपए फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो केरला ने ये यहाँ पे रिसीव किया अमाउंट ताकि वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको और बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, द फूड टेक जाइंट जोमेटो इन्होंने अनाउंस किया दैट इट विल ऑफिशियली रीब्रांड इटसेल्फ टू व्हाट। तो जोमेटो को रीब्रांड करके एटर्नल किया जाएगा, और एटर्नल ब्रांड के अंडर ही जैसे आपका जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, हाइपर प्योर हो गया, ये सारे आपके इसी एटर्नल ब्रांड के अंडर आ जाएंगे, एक ही एंटिटी के अंदर अब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली डिलीवर्ड द लेटेस्ट एंटी टैंक 4 वेपन्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेज इन फेब। तो साब एबी के द्वारा यहाँ पे डिलीवर किए गए ये 84 टैंक, राइट, इंडियन आर्मी को। एंड ये साब एबी ये एक स्वीडन बेस्ड एरोस्पेस डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है। नेक्स्ट, शेंजू 19 के क्रू ने ऑन टिएंगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराया एंड उन्होंने ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को यहाँ पे जनरेट करा, राइट। तो टेक अ नोट ऑफ दिस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किस कंट्री के द्वारा करा गया स्पेस में? चाइना के द्वारा। क्या नाम था क्रू का? शेंजू 19। किस स्टेशन पे किया गया? टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे किया गया। नेक्स्ट, विच कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 29th न्यू शेफर्ड फ्लाइट। ये न्यू शेफर्ड किसका है? ब्लू ओरिजिन का है। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस अमेजॉन के भी फाउंडर है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी लॉन्च किया है कैंपेन सावित्री फॉर बेटर हेल्थ, जो कि प्राइमरली फोकस करेगा इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ वीमेन। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसको लॉन्च किया गया टू एक्सपेंड टू इंक्लूड मोर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, राइट, जो कि ऑफर करेगा मोर अपॉर्चुनिटीज फार्मर्स को एंड ट्रेडर्स को। पूछा जा रहा है तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ, तो क्या नाम रहेगा उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का? वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव्स हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट ऑफ FY26, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी एंड सी तीन दोनों सही है। ये कह रहा है कि इंडिया का टारगेट है कि 150 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सके बाय 2047 एज अ पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान। तो नहीं, इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। अब ऑप्शन ए ठीक हो जाता आपका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा 9 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो है स्वावलंबिनी, राइट। ये वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, गर्ल्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, स्पेशली इन स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में। यहीं पे वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी फाइनेंसिंग के लिए, उनकी मेंटरिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई। उस एक्सरसाइज का नाम है विंग्ड रेडर। नेक्स्ट, अभी उस न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ताकि जो इवॉल्विंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है वीमेन की, उनको पूरा किया जा सके। वो है हेरिजॉन केयर। ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया, जो सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। तो वो कौन है? के बाला सुब्रमण्यम, राइट। इन्होंने अपॉइंट किया के बाला सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया। ये सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस आइडेंटिफाई करो उस क्रायोजेनिक इंजन को जो कि इसरो के द्वारा सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया, जिसका टेस्ट फॉर द अपर स्टेज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इन Feb 2025। तो उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE-20, इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया है इसको। नेक्स्ट, डैश सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इन Feb 2025 एट द एज ऑफ 95। तो सैमुअल शफिशुना डेनियल जोमा, राइट, इनको सर्व किया गया, इनको सर्व किया गया इन्होंने सर्व किया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, जिनका भी निधन हो गया है। लेनिन पीस प्राइज से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है।
1970 में। नेक्स्ट, उस एप्लीकेशन का नाम बताओ दैट बिकेम द सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन इन 2024 अकॉर्डिंग टू सेंसर टावर। तो वो है जेप्टो। जेप्टो वो एक ई कॉमर्स बेसिकली या क्विक डिलीवरी स्टार्टअप है जो कि सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड ड्रिंक बन गई है ग्लोबली, राइट। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया? मैकडोनल्ड्स टॉप द लिस्ट है, फॉलोड बाय KFC, डोमिनो, बर्गर किंग, जोमेटो रैंक 5th, स्विगी 9th, ब्लिंकिट 10th, सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राइट, एज अ पार्ट ऑफ सेवरल सिटीजन फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन न्यू दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा? वो है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, राइट। एंड ये आपका संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली हेल्प करेगा टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, राइट, बेटर टेलीकॉम सर्विसेज। एंड जो फ्रॉड्स होते हैं टेलीकॉम फ्रॉड्स, उनके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे का नाम बताओ, लॉन्च बाय इंडिया इन देयर 9th एडिशन विद अ न्यू सिंप्लीफाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट। तो उसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण। अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है, मार्क करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो ही इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई 16 से 19 जनवरी के बीच में, उसका नाम बताओ। वो है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप ये रिवाइज हम मेरी वीडियो जरूर देखा करो, ये वीकली अगर आप ये देख लेते हैं ना, मंथ डेली वीडियो तो देखो ही देखो, लेकिन वीकली आप देख लोगे ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चन एकदम ऐसे एकदम चुटकी बजा के रिवाइज करा दूंगा और बहुत अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, चीज़ें याद रहेंगी, एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा बन रहा है इंडिया में? वो है गुजरात। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, CG सेमी प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, एक फिजिकल सपोर्ट अग्रीमेंट साइन हुआ है, ताकि अगर कभी भी किसी भी कंपनी को फाइनेंसिंग की जरूरत पड़े और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की, तो हम उनको फाइनेंसिंग उन तक पहुंचा सकें, ताकि इस सेक्टर में कोई रुकावट ना आ सके, क्योंकि आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर्स, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एंड ये डिसाइड करेगा कि कौन फ्यूचर में ग्लोबल पावर होगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ टू कोलैबोरेट किया जा सके फॉर शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिस्क असेसमेंट? तो वो है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 के लिए एज पर द डाटा रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% था। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का जो प्रोजेक्टेड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू ग्रो बाय 6.2% इन 2024 एंड एक्सपेक्टेड है ये 5.8% से बढ़ेगा इन 2025। नेक्स्ट, किस कंट्री ने ऑफिशियली ज्वाइन किया ब्रिक्स को एज द 9th पार्टनर अंडर ब्राजील प्रेसिडेंसी फॉर 2025? देखो 2025 की ब्राजील प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास है, इससे पहले रशिया के पास थी। रशिया में ब्राजील समिट कहाँ पर हुई थी? कजान में हुई थी, जिसको हम कजान समिट के नाम से जानते हैं, राइट। और अभी जो 9th ऑफिशियल पार्टनर बन गया है, 9th पार्टनर बन गया है ऑफ ब्रिक्स, वो है नाइजीरिया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली रिसीव किया डिफेंस इक्विपमेंट्स वर्थ 35 करोड़ रुपीस फ्रॉम इंडिया अंडर सागर रिविजन? सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मालदीव्स ने यहाँ पे 35 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स रिसीव किए फ्रॉम इंडिया, डिफेंस इक्विपमेंट्स। देन रिसेंटली अभी हमको एक नैक्रो रिवॉर्ड पॉलिसी लाई गई है कि जो भी ड्रग्स को बस्ट करेगा, राइट, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा तो उनको यहाँ पे रिवॉर्ड किए दिया जाएगा, ताकि जो ड्रग्स का यूसेज बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट, उसको यहाँ पे रोक सके, राइट। तो ये जो नैक्रो रिवॉर्ड पॉलिसी है, ये कहाँ पर आई है? ये गुजरात में हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द प्लेटफॉर्म जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। तो ये है एंटिटी लॉकर, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंटिटी लॉकर बेसिकली क्या ये हेल्प करेगा कि आपके जो भी बिजनेसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनको वेरीफाई करेगा, ईजिली वेरीफाई कर देगा, जल्दी वेरीफाई कर देगा, उनको सिक्योर रखेगा। एंड ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं एंड रियल टाइम इसका एक्सेस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है, किस कंपनीज को लिस्ट नहीं किया गया अंडर द अपर लेयर सेगमेंट अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशंस फॉर NBFCs? तो इसमें से रिलायंस कैपिटल यहाँ पे अपर लेयर में नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया रुपए के साथ ताकि उनका UPI एनेबल्ड फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके? तो क्या नाम रहेगा उसका?
उस बैंक का, वो है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमी फॉर FY26 एंड FY27 एज पर IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड इन जनवरी 2025। तो 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी फॉर FY26 एंड FY27 एज पर द डाटा रिलीज बाय IMF फॉर इंडिया। देन अगर हम बात करें किसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF जो सक्सीड करेंगे वितुल कुमार को, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पे नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं CRPF के। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है? इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के हिसाब से जो कि 14 से 19 जनवरी के बीच में हुआ न्यू दिल्ली में। इनमें से हम देखें, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो B सही है, C सही है, A गलत है। A कह रहा है कि हांगकांग की ली चुकी ये मेंस विनर रहे मेंस सिंगल टाइटल के, नहीं, विक्टर एक्सेल्सन यहाँ पे विनर रहे, इन्होंने ली चुकी को हराया है, राइट। तो अब ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नीति आयोग ने अपना 10th एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट किया? 1 जनवरी 2025 को। 2015 में इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट, नेम मेंशन द प्रोडक्ट जिसको अभी GI टैग नहीं मिला है, राइट, फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से एंड ये पहली यूटी बन गई जिनको 7 GI टैग अभी मिले हैं, और 7 में से यहाँ पे अगर हम देखें, अंडमान कोकोनट वो प्रोडक्ट नहीं है, निकोबारी मठ, निकोबारी हट, पादुक वुडक्राफ्ट एंड निकोबारी हुडीक्राफ्ट, ये वो 4 प्रोडक्ट हैं प्लस 3 और प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चेयरमैन बताओ कौन है 5 मेंबर की स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के, जो कि RBI के द्वारा फॉर्म की गई टू इवेल्युएट द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 5 मेंबर की कमेटी रहेगी, राइट। एंड जिसमें से चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे ये पूछा गया है, तो महेश कुमार जैन यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे, बाकी 4 मेंबर रहेंगे। एंड ये कमेटी बेसिकली डिसाइड करेगी कि यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की क्राइटेरिया क्या है, किनको किस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, किस बेसिस पे ऐड करना है। नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया किस चीज़ को? एट द टेस्ट फैसिलिटी इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो इसरो के द्वारा विकास लिक्विड इंजन को यहाँ पे टेस्ट किया गया है, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अभी किस टीम ने यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है, जिसका 23rd एडिशन हमें देखने को मिला था विजय हजारे ट्रॉफी का। विजय हजारे ट्रॉफी बेसिकली क्रिकेट से बिलोंग करती है एंड यहाँ पे कर्नाटका ने इसको जीत लिया है फॉर द 5th टाइम। इन्होंने वडोदरा गुजरात में फाइनल हुआ था तब यहाँ पे जीत लिया। कर्नाटका को कैप्टन किया गया था मयंक अनुराग अग्रवाल के द्वारा एंड विदर्भा को इन्होंने फाइनल में हराया। नेक्स्ट, WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किस UN ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके डिक्लेयर किया 2025 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ऑन जनवरी 21। तो ग्लेशियर्स हमें पता है मेल्ट हो रहे हैं, पानी उनका लीक हो रहा है एशियन ओशंस में, सीज में, तो वो वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ रहा है, राइट, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं उससे। तो ग्लेशियर्स के पिघलने को रोकने के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन पे फोकस देने के लिए ये यूनेस्को के द्वारा मिलके, WMO एंड यूनेस्को के द्वारा मिलके इसको डिक्लेयर किया गया। एंड यहाँ पे पहला वर्ल्ड ग्लेशियर डे को ऑब्जर्व किया जाएगा 31 मार्च 2025 में। नेक्स्ट, नेम द अमेरिकन एक्टर जिनका निधन हो गया, राइट, एंड उनको वो फेमस थे बिकॉज उन्होंने जुवेनाइल अकेडमी अवार्ड जीता था 1946 फिल्म के लिए, द ईयरलिंग के लिए। वो है क्लॉडी जर्मन जूनियर। नेक्स्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से रिस्पेक्ट विद कैबिनेट अप्रूवल्स। तो यहाँ पे A ऑप्शन एंड C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जो कैबिनेट अप्रूवल है नेशनल हेल्थ मिशन का, उसको 3 साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो नहीं, 5 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द 19th ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट जो रिलीज की गई ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा ठीक नहीं है? तो ऑप्शन B सही है, C सही है, A गलत है। A कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है वर्ल्ड का, तो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है एप्पल विद अ वैल्यूएशन ऑफ $574.5 बिलियन। Next, students, let's move to the homework section. First question is, name the operation that was launched by our country India in order to help Myanmar, right, when they were hit by earthquake. Then second question, tell me, recently government has launched a taxi service across India similar to that of Ola and Uber. What is the name of that company or that service? Third question, tell me, recently who or where was India's first vertical lift sea bridge inaugurated? Name the location. Then fourth question, students, tell me, recently
who has been appointed as the RBI's deputy governor? How many deputy governors are there and name them? So today's you will be having in today's video 4 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students who are watching this video. See students, I do watch the comments and I do know the individuals who are commenting below, and those are the sincere students. So I want more and more sincere students who do the homework regularly, right? Because this will be very important for competitive exams, right? It will help you to revise the content again and again.